morning, everybody. So let's start today with the MIG-MAG process. After we did SMAW, we did TIG, and now we will see MIG-MAG. MIG-MAG is metal inert gas welding, and MAG is metal active gas welding. In the metal inert gas, the gas which is used is inert gas, and it doesn't get involved in the process of welding, whereas active gas just does get involved in the process of welding. So let's have a look at it. So the process is known as, in the US, as the gas metal arc welding, which is GMAW. So for the AWS candidates, they should know that they should pronounce this instead of MIG-MAG, they should say GMAW and FCAW. So GMAW, the welding process, is a versatile technique suitable for both thin sheet and thick sections of components in most metallic materials. An arc is struck between the end of the wire electrode and the workpiece, melting both form a welding pool. The wire serves as a source of heat, and the filler metal for the joint, and is fed through a copper contact tube, so called as contact tip, which conducts welding current into the wire. So the weld pool is protected from surrounding atmosphere by shielding gas fed through a nozzle surrounding the wire. So shielding gas selection depends on the material being welded and the application. The wire is fed from the reel by a motor drive, and the welder or the welding machine moves the welding gun and torch along with the joint line. The process offers high productivity and economical because of consumable wire and is continuously fed. So guys, this is a combination of TIG and SMAW process. In SMAW, you know that the downside is that electrode has to be changed every now and then. And in TIG, it is a very slow process because the wire has to be fed by hand. So in this process, the wire itself is coming in the form of a reel, and that reel is fed in the machine, and the wire will come continuously. And in the hand of the welder, there is a gun which has a button which he will press, and then constantly the wire will be fed to him. So it's a high productivity welding because there is no change of electrode and anything like that. But the problem is there is an inclusion of gas, so the cost is a little bit higher than the SMAW welding. And welder skill, okay, I mean, this is a very fast process to learn rather than SMAW. I will still say that FCAW is faster to learn than. So what you can see here is the weld material being welded. You can see the arc being generated. This is the fusion welding process. So this is the gas shielding. So the gas will continuously come. So just like the TIG machine, the FCAW machine also has the connection of gas in the back, and the gas will flow through the nozzle. And between the nozzle, you can see this gray color. This is the consumable, which is called as the filler wire in this case. And then the copper contact tube will be holding the whole mechanism in place. So let's see this process. So MIG-MAG process uses semi-automatic, mechanized, or automatic equipment. So you can see already that the semi-automatic process it is called as, and many cases it can be completely automized also. So when robotic welding will be there, it will be the high demand machine. In semi-automatic welding machine, somebody has the interest to see, you can just type robotic welding machine, and you can see that the robotic welding machine today, which have started to come in the market, they are already using a filler wire which is in the reel, and it is just like FCAW filler wire, which is continuously fed into the machine because it has to continuously work. No SMAW cannot be done any automatic welding. So as this semi-automatic welding machine will become FCAW machine in the future. And also TIG to a certain extent is being automized, but let's see how that comes out. So the travel speed and the wire position are in manual control. In mechanized welding, all parameters are under automatic control, but can be varied manually during the welding process. Example, steering of the welding head and the adjustment of the filler wire speed and the arc voltage. So here the wire speed will
decide the current and the voltage. This is a different kind of process. Let's have a look. There is a lot of fine tuning in this process also. There is FCAW, there is GMAW, there is a self shielded, there is gas shielded, both kinds. Then there is also, depending on the method of spray, that there is different kinds of spray so the PQRs will change like that. So with automatic equipment, there is no manual intervention during the welding. Figure shows the equipment during the welding of MIG-MAG process. So it's a typical welding machine has been shown here. So you can see the same welding gun is there, little bit modified for FCAW wire to continuously come from the feeder machine. So wire electrode supply will be done from that box, which is basically looks like welding machine, but inside you can put the entire reel of the GMAW filler wire. Attached to that is the gas bottle, of course, with the regulator. That gas bottle connection goes behind the wire feed welding machine. There is a power source attached to it, of course, which is either if you want cool type or non-cooling type, both options are available. So we'll see this. What are the advantage and disadvantage? So why it was invented? So basically, the industry was looking for continuous wire feeding mechanism. So they thought that okay, the TIG wire is already there. Let us wind it in the bobbin, and we can make a continuous feed. So continuous wire feed, automatic self-regulation of the arc length, high deposition rate, and minimum number of stop locations. So once you start the welding, you don't have to stop because there is the electrode is not going to be changed. High consumable efficiency, because the consumable also is a very good consumable in this case. Heat input is the range of 0.1 to 2 kilojoules per millimeter, which is good heat amount, considered to be good amount of heat input. So also low hydrogen potential process. So here there is no risk of high hydrogen issues then related to hydrogen cracking. Welder has a good visibility of weld pool and joint line. So here so welder has good visibility. मैंने आपको बताया little or no post cleaning in this process. ये एक अच्छा है कि इसमें ज़्यादा cleaning आपको करना नहीं पड़ेगा, but कुछ इसमें भी कुछ process है जो like FCAW है जो खुद सेल्फ शील्डिंग है, उसमें थोड़ा क्लीनिंग आपको करना पड़ेगा क्योंकि उसमें वायर में अंदर में फ्लक्स रहता है, तो वो फ्लक्स का नेचुरली आपको क्लीन करना पड़ेगा बाद में. बट कुछ है सॉलिड वायर सिस्टम है इसमें जिसमें आपको क्लीनिंग अवॉइड कर सकता है. देन इट कैन बी यूज्ड इन ऑल पोजीशंस. सो आपको ड्रिप ट्रांसफर एक है, ये आपको याद रखना है कि ये ऑल पोजीशन में यूज हो सकता है. वेराज इसमें ग्लोबुलर ट्रांसफर है, शॉर्ट सर्किट ऐसे सब ट्रांसफर मेथड है, स्प्रे ट्रांसफर है जो आपको सब पोजीशन में यूज नहीं कर सकते. सो गुड प्रोसेस कंट्रोल पॉसिबिलिटी. सो इसमें आपको ऑटोमेशन भी कर सकता है, फुली ऑटोमेट भी कर सकता है. आज आपको अगर यूट्यूब पे जाके आपको ऑटोमेटिक वेल्डिंग का बारे में आप लिखेगा तो ऑटोमेटिक वेल्डिंग में ये ऐसा ही सिस्टम यूज करता है जिसमें कंटिन्यूस वायर फीड रहता है. तो ये जो आजकल प्रोसेस इसको ऑटोमेशन कर रहा है ये जो प्रोसेस में. सो आगे जाके देखेगा फ्यूचर में कि यही प्रोसेस है जो ऑटोमेशन हो सकता है. बाकी प्रोसेस जो है टिग है, थोड़ा बहुत टिग भी कर रहा है आजकल टिग प्रोसेस से, बट हम लोग देखा है कि SMAW एंड ऑल ये सब नहीं, ऑन मैनुअल जो वेल्डिंग है इसको ऑटोमेशन करना बहुत मुश्किल है. सो इसमें गुड प्रोसेस कंट्रोल पॉसिबिलिटीज है क्योंकि इसमें बहुत सारा पैरामीटर्स है कंट्रोल करने के लिए, इसलिए इसमें प्रोसेस जो है इसका जो वेरियस प्रोसेस है जो हम लोग आगे डिस्कस करेगा इसको आप कंट्रोल कर सकता है इजीली. सो कुछ चीज़ें जो स्किल से कर सकता है, कुछ चीज़ें जो आपको इक्विपमेंट से कर सकता है. सो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन. सो ये बस कार जो वेल्डिंग है उससे लेके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से लेके ऑयल एंड गैस फील्ड से सब जगह पे इसका एप्लीकेशन आजकल देखा गया है. बट कुछ चीज़ है इसमें जो ऑयल एंड गैस में अलाउड नहीं है इसका वेल्डिंग, बट ओवरऑल आप देखेगा तो इजीली इसका स्ट्रक्चरल में यूज करता है. कुछ पाइपिंग एप्लीकेशंस है जहाँ पे GMAW यूज करता नहीं है, क्लाइंट अलाउ नहीं करता है. बट आजकल आई थिंक ये जो आगे जाके जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो आई थिंक ये सब जगह पे यूज होने लगेगा. इसका डिसएडवांटेज, हर चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज लाजिम रहेगा.
सो इसका डिसएडवांटेज क्या है? सो नो इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ फिलर एडिशन। सो हमने देखा है कि टिक वेल्डिंग में और SMAW में कैसा आदमी हाथ से इलेक्ट्रोड मैनिपुलेट करता है, ये इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको वायर फीड स्पीड अगर आपने फीड कर दिया उतना स्पीड, तो वो आपको वही स्पीड से आपको गन फिलर मटेरियल देता रहेगा। आपको उसी स्पीड से वेल्डिंग करना पड़ेगा। आपको कम करना है तो वापस स्पीड आपको कम करना पड़ेगा। तो डिफिकल्ट टू सेटअप ऑप्टिमम पैरामीटर टू मिनिमाइज स्पैटर लेवल। तो जो शुरुआत में पिक्योर करने से भी पहले आपको एक अच्छा वेल्डर मिलेगा, तो आपको ये पैरामीटर सेट करना आसान होगा। अगर आपको नया वेल्डर है तो आपको बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा ये पैरामीटर सेट करने के लिए। पैरामीटर कौन सा हम लोग आगे आने वाले इसमें देखेंगे कि कौन सा पैरामीटर है जो वेल्डर स्किल के ऊपर निर्भर है, और ये पैरामीटर आपको हर एक वेल्डर को अपना पैरामीटर सेट करके ही वेल्डिंग अच्छा से करना चाहिए। तो रिस्क ऑफ लैक ऑफ फ्यूजन व्हेन यूजिंग डिप ट्रांसफर ऑन थिकर वेल्डमेंट्स। सो हमने देखा है जब हेवी मेटल में वेल्डिंग होता है कि 80 mm, 60 mm, 40 mm, 50 mm, तो इसमें लैक ऑफ फ्यूजन का रिस्क रहता है। तो इसके हिसाब से ही आपको NDT प्रेफर करना चाहिए। यू शुड गो फॉर UT, क्योंकि आपको मालूम है लैक ऑफ फ्यूजन UT में बहुत इजीली मिल जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें एक रिस्क है उसका, लैक ऑफ फ्यूजन का। हाई लेवल ऑफ इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ऑफ कोर्स इसमें इक्विपमेंट मेंटेनेंस बहुत होता है। हमने देखा है कि बहुत सारा मूविंग पार्ट्स है इसमें। इसमें वायर फीड वाला एक डिफरेंट बॉक्स है, तो उसमें जो बहुत सारा इक्विपमेंट है, उसमें जो बहुत सारा मूविंग पार्ट्स है, रोलिंग पिन्स है, तो इसमें थोड़ा बहुत उसका भी मेंटेनेंस आता है। और बहुत में कनेक्टर्स है जो अच्छा मेंटेन करके रखना पड़ता है। लोअर हीट इनपुट कैन लीड टू हाई हार्डनेस वैल्यूज। सो इसमें आपको ये एक खतरा है कि हार्डनेस भी आपको थोड़ा मिसमैच हो सकता है, तो इसमें हीट इनपुट का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो हायर इक्विपमेंट कॉस्ट देन MMAW वेल्डिंग। ऑफ कोर्स MMAW और टिक वेल्डिंग के हिसाब से देखेगा तो इसमें FCAW में ज़्यादा कॉस्ट आएगा वेल्डिंग के लिए मशीन का। साइट वेल्डिंग रिक्वायर्स स्पेशल प्रिकॉशन टू एक्सक्लूड ड्रॉट्स विच में डिस्टर्ब द गैस शील्डिंग। सो हमने देखा है कि जो हम लोग ने साइट पे वेल्डिंग करता है, ओपन में वेल्डिंग करता है, जहाँ पे हाइट पे वेल्डिंग करता है, कभी जैकेट में कभी टॉप साइड में, तो हमने देखा है कि इसको कंप्लीट टारपोलिन से कवर करके ही वेल्डिंग करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी एयर में जो डिस्टर्बेंस आता है वो गैस शील्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब, और वेल्डिंग आपका अफेक्ट होगा। सो दैट इज द रीजन बिकॉज दैट इज द थिंग। इसीलिए इसको कवर करके वेल्डिंग करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये प्रोसेस ज़्यादातर हम लोग शॉप में यूज़ करते हैं, और फील्ड में हम लोग SMAW या कोई और टेक्निक यूज़ करते हैं। अगर यही करना है तो हम लोग को प्रॉपर शील्डिंग करना चाहिए। जॉइंट एंड पार्ट एक्सेस नॉट एज गुड एज MMAW एंड टिक वेल्डिंग। सो हमने देखा है कि कुछ जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन रहता है जिसमें FCAW का जो कप है वो बराबर से जाता नहीं है। ऐसा बहुत सारा कंप्लेंट आता है वेल्डर का। तो उसमें हम लोग फिर रूट MMAW मार के या हॉट पास MMAW मार के फिर हम लोग FCAW फिल एंड कैपिंग के लिए यूज़ करता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आपको सोचना चाहिए। अगर आपका जॉइंट डिज़ाइन बहुत ही क्रिटिकल है या बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो उसमें FCAW को ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग जब पिक्योर करता है वो एक सिंपल बट जॉइंट पे हम लोग करता है, और जब हम लोग फील्ड में जाता है वहाँ पे क्रॉस जॉइंट्स, टी जॉइंट्स, के जॉइंट्स, बहुत सारा टाइप का जॉइंट्स आता है, जहाँ पे इसका आपको ध्यान रखना है। देन क्लीनिंग ऑफ बेस मेटल slag process tolerate greater contamination. So बेस मेटल क्लीनिंग आपको अच्छा से रखना है इसमें वेल्डिंग में। और स्लैग प्रोसेस टॉलरेट कर ग्रेटर कंटामिनेशन, मतलब ये ज़्यादा कंटामिनेशन बर्दाश्त नहीं करता है, तो अच्छा ब्राइट मेटल फिनिश होना चाहिए आपका जॉइंट का। तो देखते हैं वेरिएबल्स जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, बहुत सारा वेरिएबल्स ऑप्टिमम पैरामीटर करना पड़ेगा। ये कौन सा पैरामीटर है? सो ये वेल्डिंग करंट और वायर फीड स्पीड एक ही है इसमें। तो ये वेल्डिंग मशीन आप देखेगा तो इसमें 2 ही नॉब है, जैसा हम लोग ने इसमें देखा है जो वेल्डिंग का जो वीडियो देखा। तो वायर फीड, यही करंट, वायर फीड स्पीड और करंट का एक ही नॉब है। आपने वायर फीड स्पीड बढ़ा दिया मतलब आपने करंट बढ़ा दिया, और वोल्टेज का एक अलग बटन। तो ये 2 ही बटन है इसमें यूजुअली इंपॉर्टेंट रहता है। और वोल्टेज आप देखेगा कि आप अगर टिप टू वर्क डिस्टेंस चेंज किया, मतलब थोड़ा आपने ज़्यादा रखा, तो इसका वोल्टेज इफेक्ट होता है, हीट इनपुट इफेक्ट होता है।
इवन गैस शील्डिंग भी अफेक्ट होता है। तो ये सब हम देखेंगे आने वाले। फिर गैसेस, ऑफ कोर्स इसमें गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा गैसेस मिक्स करके भी इसमें मारता है। डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस आपको गैस का चयन करना है। कभी आप फुल CO2 चाहिए, कभी आर्गन, कभी हीलियम, कभी मिक्स। तो ये इसमें गैस भी इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रैवल स्पीड और इलेक्ट्रोड ओरिएंटेशन। सो ट्रैवल स्पीड मतलब वेल्डर का जो स्पीड है वो, और बाद में ये जो इलेक्ट्रोड ओरिएंटेशन है, मतलब अगर आप समझो 90 डिग्री रखा या 15 डिग्री रखा, 30 डिग्री, 45 डिग्री रखा, ये भी इसमें मैटर करता है। फिर कॉन्टैक्ट टिप टू वर्क डिस्टेंस, ये जो मैंने फोटो डाला है इसमें कॉन्टैक्ट टिप, यहाँ पे जो कप है इसका टिप से आपको जो वर्क डिस्टेंस है ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि यही डिसाइड करता है आपका वोल्टेज थोड़ा चेंज हो जाता है इससे, ये अगर आप बढ़ गया तो। और बाद में गैस शील्डिंग भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें। फिर गैस शील्डिंग, गैस नोजल, ये जो नोजल है यहाँ पे जो गैस आता है बाहर जो शील्डिंग के लिए यूज करता है वो भी इम्पोर्टेंट है। और टाइप ऑफ मटेरियल, मेटल ट्रांसफर। तो जो इलेक्ट्रोड बर्न होता है उसमें ये इलेक्ट्रोड ट्रांसफर होता है वेल्डिंग पे, तो इसमें बहुत सारा टाइप इन्होंने फाइंड आउट किया है, जैसे कि स्प्रे ट्रांसफर, ग्लोबुलर ट्रांसफर, फिर हम लोग ने एक और ट्रांसफर देखा डिप ट्रांसफर। सो ये बहुत सारा प्रोसेस है इसमें ट्रांसफर का। सो हर एक का फायदा और नुकसान है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इंक्रीजिंग वायर फीड स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस करंट इन द वायर्स, तो इसलिए मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। और जनरली प्रोड्यूसेस, ये वायर जो है 0.6, 0.8, 1 mm, 1.2, 1.4, 1.6 ये डायमीटर में मिलता है। सो वोल्टेज, ये जो वोल्टेज भी इसमें हम लोग ने बोला था कि बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। So the most important setting in any spray transfer, as it controls arc length in dip transfer mode, also affects the rise of current and overall heat input in the weld. So spray transfer में so the most important setting in the spray transfer is controls the arc length. कि आर्क लेंथ जो है ये आपको स्प्रे ट्रांसफर में इम्पोर्टेंट है। इन डिप ट्रांसफर इट आल्सो अफेक्ट्स द राइज ऑफ करंट एंड ओवरऑल हीट इनपुट। सो अगर आपने कॉन्टैक्ट टिप या ज़्यादा रखा ये करंट या वायर फीड स्पीड, तो ओवरऑल हीट इनपुट आपका अफेक्ट होगा। सो आर्क लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आप आर्क लेंथ कम रखेगा आपको अच्छा है, तो इसको ये ऑप्टिमाइजेशन वेल्डर को करना पड़ता है। सो increase in both wire feed speed, current and voltage will increase the heat input. So क्या होगा, आप heat input या हार्डनेस वैल्यू अगर आपको बराबर चाहिए मटेरियल में, तो आपको वायर फीड स्पीड और करंट वोल्टेज के हिसाब से जो वेल्डिंग है ये आपको पहले ऑप्टिमाइज करना चाहिए। क्योंकि सिंस वेल्डर के हाथ में इलेक्ट्रोड या फिलर वायर नहीं है और ये कंटिन्यूस फीडिंग हो रहा है, तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए उसको स्किल होना चाहिए। So the welding connection need to be checked for soundness, and any loose ones will result in resistance causing voltage drop in the circuit and will affect the characteristic of welding arc. So इसमें क्या होता है कि वेल्डिंग कनेक्शन अगर पुराना होगा या अगर आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, महीना महीना डस्ट में पड़ा है, तो आपको वोल्टेज इफेक्ट होगा और बाद में आपको वोल्टेज ड्रॉप की वजह से रेजिस्टेंस आ जाएगा सर्किटरी में, और बाद में आपको अच्छा कैरेक्टरिस्टिक या वेल्ड आर्क नहीं मिलेगा। मतलब आपका एक टीम होना चाहिए मेंटेनेंस का जो हमेशा इसके पीछे मेंटेनेंस करता रहेगा। सो द वोल्टेज will affect the type of transfer achievable, but it is also highly dependent on type of gas being used. इसमें जो ट्रांसफर मैकेनिज्म है, या स्प्रे ट्रांसफर है या ग्लोबुलर ट्रांसफर है या डिप ट्रांसफर है, वो आपका गैस पे भी डिपेंड करेगा, इसलिए आपको गैस का चयन भी प्रॉपरली करना पड़ेगा इसमें। अभी हम लोग देखते हैं ये ड्राइंग में कि वोल्टेज अगर बढ़ा दिया तो क्या होगा। तो हम लोग देखा है कि इसमें कॉन्टैक्ट के ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे थोड़ा बहुत इंक्रीज है और वोल्टेज भी इंक्रीज है। तो इंक्रीज इन आर्क वोल्टेज क्या करेगा, पहला आपको 22 वोल्ट रखा आपने, प्रॉपर आपको पेनिट्रेशन मिला, आपको बीड प्रोफाइल भी ओके मिला। फिर आपने थोड़ा वोल्टेज बढ़ा दिया सिर्फ 1 ही वोल्ट, तो आपने देखा कि ये शैलो हो गया, ऑलमोस्ट पेनिट्रेशन सेम है, बट इसका पेनिट्रेशन का जो
वी शेप हो गया इसमें, ये जो यू शेप था इसमें प्रॉपर पेनिट्रेशन दोनों साइड में, लैक ऑफ फ्यूजन का प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, पर इसमें हो सकता है क्योंकि ये वी हो गया, तो अगर आपको प्रॉपर फ्यूज नहीं हुआ साइड वॉल में तो फ्यूजन का प्रॉब्लम आ सकता है। और भी अगर आप वोल्टेज बढ़ाता है तो इसमें आपका शैलो हो जाएगा वेल्डिंग, ये हाई थिकनेस वेल्डिंग आप कर नहीं पाएगा इसमें, तो ये भी ध्यान रखना है तीनों का। तो देखते हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम इन दिस इज आल्सो गैस। आप देख रहे हैं कि आर्गन का यूज करेगा तो वेल्ड प्रोफाइल कैसा मिलता है। अगर आप आर्गन हीलियम मिक्स किया तो कैसा मिलता है, हीलियम किया तो कैसा मिलता है। हीलियम में आप देख सकते हैं सिर्फ कम थिकनेस वाला ही मटेरियल को वेल्डिंग करता है हीलियम गैस यूज करके, एंड ऑल्सो द CO2 में आप देख रहे हैं पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा काफी है और बाद में वाइड भी है एंगल, इसका मतलब आपको ये बहुत सूटेबल है। पर इसमें क्या होता है, CO2 यूज करने से स्पैटर वगैरह का आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो ये डिपेंडिंग ऑन द गैस, ये स्किल ऑफ द वेल्डर भी उसको पता होना चाहिए कैसे मैनिपुलेट करता है। So for non-ferrous metal and their alloys such as aluminum, nickel, copper, an inert gas shielding is a must be used. तो बोलता है कि करेक्ट, एल्यूमिनियम निकल कॉपर रहेगा तो इनर्ट गैस का इस्तेमाल करना चाहिए, विच इज MIG। सो इनर्ट गैस का मतलब है आर्गन या हीलियम जो वेल्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यूजुअली प्योर आर्गन एंड आर्गन रिच गैस विथ हीलियम एडिशन यूज किया जाता है। The use of fully inert gas, why is the process is called as MIG, इसीलिए उसका नाम MIG पड़ा है। So welding of precisely used terminology, this should only be used when referring to welding of non-ferrous material. So non-ferrous material जो एल्यूमिनियम है, निकल है, कॉपर है, जो आर्गन गैस यूज करता है वहां पे, तभी आपको इसका नाम MIG यूज करना है। पर अगर आप कार्बन स्टील यूज कर रहा है तो आपको वो आर्गन या आर्गन गैस या हीलियम गैस यूज नहीं कर रहा है तो आपको मैग बुलाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यही है कि वन ऑफ द मेन डिफरेंस है मिग मैग में। मिग यूजुअली नॉन फेरस को वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, मैग यूजुअली कार्बन स्टील को वेल्डिंग करने के लिए, फेरस आइटम वेल्ड करने के लिए यूज करते हैं। So the addition of some helium to argon gives more uniform heat concentration. So ये जो गैस का जो ऑप्टिमाइजेशन है, इन्होंने हीट इनपुट बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए यूज करते हैं। So the argon helium mixture gives hotter arc, so are beneficial for welding thicker base material, those with higher thermal conductivity, copper and aluminum. तो हमने देखा है कि एल्यूमिनियम और हीलियम, आर्गन और हीलियम मिक्स करने से आपका आर्क और भी थिक हॉट हो जाता है और आपको थिकर सेक्शन वेल्ड कर सकता है। तो अगर आपको हेवी सेक्शन वेल्ड करना है एल्यूमिनियम में या कॉपर में तो आपको मिक्स करके गैस डालना पड़ेगा। For welding of grades of steel, including stainless steel, controlled addition of oxygen or carbon dioxide to generate stable arc or to give good droplet wetting. तो स्टेनलेस स्टील वेल्ड करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा मिक्स करते हैं ऑक्सीजन के साथ, सो दैट ये आर्क स्टेबल रहे, और उसमें जो ड्रॉपलेट गिरता है, इसका जो गिरने के टाइम बाद में जो वेल्ड बन जाता है वो, तो इसका जो प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपरली रहता है। Because these addition react with molten metal and they are referred to as active gas. So इसीलिए ये मैग बन जाता है अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है तो, क्योंकि वो एक्टिव गैस बन जाता है और वो आपका वेल्ड के साथ भी रिएक्ट करता है। So that is why the item material is called as, the welding process is called as mag. देखते हैं अभी एक दो पेज है सिर्फ गैसेस के ऊपर, क्योंकि इसमें गैस बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। So अगर मैंने 100% CO2 गैस डाल दिया, यूज किया, तो CO2 गैस कैन नॉट सस्टेन स्प्रे ट्रांसफर, तो आपको ये स्प्रे ट्रांसफर में दिक्कत आ जाएगा, बाधा आ जाएगा CO2 में। So as the ionization potential of the gas is too high, तो ये गैस, हर एक गैस आयोनाइजिंग पोटेंशियल अलग अलग रहता है। CO2 का आयोनाइजिंग पोटेंशियल बहुत हाई है, तो वो एक्चुअली आपको अच्छा पेनिट्रेशन दे सकता है और वो ग्लोबुलर ट्रांसफर को ज़्यादा प्रमोट करता है और वो आर्क फिर स्टेबल रहता है उसमें ग्लोबुलर ट्रांसफर में। पर ये स्प्रे ट्रांसफर मोड के लिए ठीक ठाक माना नहीं जाता कार्बन डाइऑक्साइड, और ये इंस्पेक्टर को ध्यान रखना चाहिए। 100% CO2 gas cannot sustain spray transfer as the ionization potential of the gas is too high and it gives very good penetration
It promotes globular transfer and also very unstable arc and a lot of spatter. So every gas has a different ionizing potential. CO2 gas has a very good penetration. So people who use CO2 gas for carbon steel welding, but the problem is some spray transfer method it will not be suitable for. But it is very good for globular transfer method. So that is what is the thing, that all the gas is not suitable for all the type of transfers. So argon, let's see about how is our 15% argon and 20% CO2 gas. Sorry, argon plus 15 to 20% of CO2 gas. The percentage of the CO2 or oxygen depends on the type of steel being welded and the mode of metal transfer used. Argon has much lower ionization potential and can sustain spray transfer above 24 welding volts. Argon gives a very stable arc, little spatter but lower penetration than CO2. Argon and CO2, argon and 15%, 5 to 20% of CO2 gas mixture give the benefit of both gases. Good penetration with stable arc and is very little spatter. CO2 gas is much cheaper than argon and its mixture is widely used for carbon and some low alloy steel welding. तो यही हमको फाइंड आउट करना है कि आपका आइडियल मिक्सचर ऑफ गैस कौन सा होगा. अगर आपको 100% CO2 यूज करना है फाइन, पर आप उसमें ग्लोबुलर ट्रांसफर ही कर सकता है, स्प्रे ट्रांसफर नहीं कर सकता है. पर अगर आपको आर्गन और CO2 मिक्स करके यूज करना है, 15% CO2 गैस डालना है, तो आपको डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्टील आप बिल्ड कर रहा है, कौन सा मेटल ट्रांसफर आप यूज कर रहा है, तो इसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको तय करना है आपके PQR के लिए. फिर ही आपको ये ऑप्टिमम मेथड आपको कर सकता है. तो आर्गन और 1 to 5% CO2 का क्या होगा? सो वाइडली यूज फॉर स्टेनलेस स्टील, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में हमको ज़्यादा CO2 नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बन पिकअप होने का खतरा रहता है. इसलिए हमको CO2, आपने देखा कार्बन स्टील में 20% तक जाते हैं, बट इसमें स्टेनलेस स्टील में वी आर यूजिंग मैक्सिमम आर्गन, trying to minimize the CO2. In fact, बहुत तो 100% argon पे ही believe करता है. But anyway, you can use it. So let us see this drawing. The drawing is active shielding gas mixtures for mag welding of carbon and magnesium steel and low alloy steels. Blue is the cooler and red is the hotter mixture of gas. So आपको इससे एक अंदाजा आएगा कि कौन सा गैस मिक्सचर ज़्यादा हॉट है वेल्डिंग के लिए और कौन सा जो है उसको कूल करता है. फॉर एग्जांपल, अब अगर ये एक्सेस में देखेगा तो ये थिकनेस का एक्सेस है. तो जैसे जैसे आपका थिकनेस बढ़ता है, आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस करके आपको वेल्डिंग करना पड़ता है. अगर आपने कम थिकनेस वेल्डिंग कर रहा है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा. सो ये डिप ट्रांसफर मेथड के लिए है. पर CO2, अगर आप स्टैंडअलोन CO2 लेगा तो कार्बन स्टील में आप कोई भी थिकनेस वेल्ड कर सकता है. स्प्रे ट्रांसफर मेथड में आपको आर्गन CO2 गैस मिक्स करके यूज करना है और आपको ये रेंज में आपको करना है. अगर आप लो थिकनेस में कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड 5 to 10% काफ़ी है. पर जैसे जैसे आपका थिकनेस बढ़ते जाता है, आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो पेनिट्रेशन प्रमोट करता है इसीलिए. पर अगर आपको आर्गन और ऑक्सीजन मिक्स करना है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत कम होना चाहिए, 1 to 5%, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस दैट यू आर वेल्डिंग. क्योंकि आर्गन गैस थोड़ा महंगा है, इसलिए CO2 या O2 इससे ज़्यादा मिक्स करेगा तो आपको अच्छा कैपेबिलिटी मिलेगा. बट मैं तो बोलता हूँ आइडियली you go for 100% CO2 for carbon steel welding, and for stainless steel welding you will do some percentage of carbon dioxide gas. और हमने देखा है कि पल्स मोड में, पल्स ट्रांसफर मेथड में आर्गन CO2 मिक्सचर का ये रेंज होता है यूजुअली. तो गैस मिक्सचर्स विथ हीलियम इंस्टेड ऑफ आर्गन गिव्स हॉटर आर्क. सो अगर आप आर्गन के बदले में हीलियम यूज करते हैं तो वो ज़्यादा हॉट आर्क को प्रमोट करता है, ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा. more fluid being welded, more fluid weld pool and better weld profile you will get. So these quaternary measures mixtures permit higher welding speed but not be suitable for thin sections. So that is what you have to understand, that it permits higher speed welding but not suitable for thin sections.
So let's see what's about stainless steel. Austenitic stainless steel are typically welded with argon CO2 mixture, O2 mixture for spray transfer or helium argon CO2 mixture for all modes of transfer. तो इसमें तो यहाँ पे उसने दो तीन गैस मिक्स करने की बात कर रहा है. So this is making the process even more complicated. But you can do it. It's not that it is difficult. So the oxidizing potential mixture is kept to minimum 2 to 2.5 maximum CO2 to stabilize the arc, but minimum effect on corrosion performance. Because austenitic stainless steel have low thermal conductivity, the addition of helium helps to avoid lack of fusion defects and overcome high heat dissipation into the material. So this is what the thermal conductivity, based on your requirement. If stainless steel you are using, then you need that the thermal, because stainless steel's thermal conductivity itself is low. So in addition of helium, you will help a little bit of heat and then avoid the lack of fusion issues. So helium addition are up to 85% compared to 25% mixture used for carbon and low alloy steels. CO2 containing mixtures are sometimes avoided to eliminate potential carbon pickup. So what happens, you are using stainless steel, so the properties of stainless steel should be proper. That is why carbon dioxide gas is mostly avoided there. So you can see on the based on thickness, helium gas is used for and also you can see the helium gas mixing for the various temperature thickness range. And with you have argon and CO2 oxygen mix, that also you can see here, because it is not used for heavy thickness welding. So there is a delicate balance here. So if you have heavy thickness welding in stainless steel, you will rather go to 0.5 to 2% of carbon dioxide. Avoid for the heat transfer, you rather use helium rather than argon. So you put more helium in this, so it will promote the heat and reduce the carbon pickup by reducing carbon dioxide. So when you are doing low thicknesses, that is you can avoid helium and go with carbon dioxide reduced percentage. And to give some more mixture, you can use the oxygen instead of more carbon dioxide, because in stainless steel you want to avoid the carbon dioxide. This is how to read this particular table or chart. So for martensic and duplex stainless steel, specialist advice should be sought. Some argon helium mixture containing up to 2.5 nitrogen are available for welding duplex stainless steel. So the mixture of gas, naturally you will be getting in touch with the welding or filler wire consumable manufacturer and trying to find an optimum range of gas to be used there. So inert gas are used for light alloys and those sensitive to oxidation. Welding in grade inert gases should be purchased rather than commercial purity to ensure good welding quality. And also the QC inspector must check this, what gas it is coming from, where is it commercial purity or where it is industrial purity, because it matters, and because it is very important gas mixture. And if you are getting some moisture pickup in that, it is all problem for the welding. So you want a very good purity gas. Argon can be used for aluminum because there is sufficient surface oxide available to stabilize the arc. So aluminum के लिए argon use कर सकता है. For materials sensitive to oxygen such as titanium, nickel alloys, stability may be difficult to achieve with inert gas. In some application, density of argon is approximately 1.4 times of the air. Downhand position, the relative heavy argon is very effective at displacing air. Disadvantage is when working with confined space. Risk of argon buildup, dangerous levels, and asphyxiations of the welder. So ये आर्गन एल्यूमिनियम के लिए अच्छा है, स्टेनलेस स्टील के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बट ये डेंस है, ये 1.4 टाइम्स हेवियर रहता है एयर से. इसीलिए जब आप पाइपिंग में आर्गन का चेक करता है परसेंटेज, ऑक्सीजन परसेंटेज, तो आप नीचे साइड चेक नहीं करता है, ऊपर साइड चेक करता है, क्योंकि ये आर्गन गैस फिल होते बहुत टाइम लगता है. और बाद में टॉप से अगर आप मेजर करेगा तो आपको पता चलेगा कि
आर्गन वहाँ पे है, मतलब सब जगह पे है। अगर आप बॉटम में मेजर करेगा, बॉटम में तो नेचुरली वो होगा ही, बिकॉज वो हेवियर गैस है। और ये जब हम लोग कन्फाइंड स्पेस में पाइपिंग वेल्डिंग या कोई भी चीज का वेल्डिंग करने के लिए जाता है आर्गन गैस के साथ, तो हमको स्पेशल प्रिकॉशन कर लेना है, क्योंकि आर्गन गैस के बिल्डअप की वजह से वेल्डर को खतरा रह सकता है दम घुटने का। एस्फिंक्शन मतलब दम घुटना, तो दम घुटने का खतरा हो सकता है। आर्गन हीलियम मिक्स, सो आर्गन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मिग वेल्डिंग, इसीलिए आर्गन ज्यादा मिग वेल्डिंग में यूज होता है, जहाँ पे आपको नॉन फेरस वेल्डिंग करना है of light alloys, but our advantage can be gained by the use of helium and argon helium mixture. Helium possesses a higher thermal conductivity than argon. इसीलिए हमने देखा है कि हीलियम को जहाँ हीट ज़्यादा चाहिए, helium is used there. And the hotter weld pool produces improvised penetration, and on an increase in the welding speed, higher helium content gives deep, broad penetration profile, but produces high spatter levels. So ये भी एक मसला है, अगर आपको हेवी थिकनेस वेल्ड करना है तो हीलियम गैस आप यूज करेंगे, बट आपको स्पैटर से बहुत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपका जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसको आपको स्टेबलाइज करना पड़ेगा, और वेल्डर को बहुत सारा ट्रेनिंग देना पड़ेगा। So, but ये आपको penetration अच्छा खासा देगा हीलियम। So with less than 80% argon, a true spray transfer is not possible. With globular type transfer, the welder should use a buried arc to minimize spatter. Arc stability can be problematic in helium and argon helium mixture. इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं आर्क स्टेबिलिटी का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए वेल्डर को अच्छा खासा ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। Since helium raises the arc voltage, so there is a larger change in the arc voltage with respect to arc length. So arc voltage, arc length का change होता है इसमें हीलियम में, इसीलिए भी मैंने आपको बोला कि वेल्डर स्किल इसमें वो ऑप्टिमाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट है। So helium mixture requires higher flow rate than argon shielding to provide the same gas protection. So आपको इसका मिक्सचर का जो स्पीड है या फ्लो रेट है वो भी आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। यूजुअली हम लोग 15 to 20 क्यूबिक पर फीट रखता है, तो इसमें ज्यादा रखना पड़ेगा आपको, अबव 20-25 रखना पड़ेगा। There is a reduced risk of lack of fusion defects when using argon helium mixture, particularly on thick section aluminum. Argon helium mixture will offset high heat dissipation in the material above thickness 3 mm. So आप क्यों हीलियम यूज करता है? हीलियम बिकॉज आपको अच्छा पेनिट्रेशन चाहिए और आपको लैक ऑफ फ्यूजन जैसा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 5 mm 7 mm से ऊपर वेल्डिंग कर रहा है तो आपको हीलियम का गैस मिक्सचर बढ़ाना पड़ेगा, लो रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज दिस टेबल, और ये जो टेबल है समरी ऑफ शील्डिंग गैस एंड मिक्सचर यूज फॉर डिफरेंट बेस मटेरियल फॉर मिगमैग वेल्डिंग। ये आपको कट करके या कॉपी करके आपको आपके वर्कशॉप में या साइट में इसको पोस्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ये जनरली वेल्डर को भी मालूम होना चाहिए, वेल्डिंग फोरमैन, वेल्डिंग सुपरवाइजर, क्यूसी इंस्पेक्टर, क्यूसी सुपरवाइजर, सबको ये पता होना चाहिए। इसीलिए इसका मैं तो एडवाइस करेगा ये आपको कॉपी करके वहाँ रखना चाहिए। सो कार्बन स्टील के लिए कौन सा शील्डिंग गैस और उसका क्या रिएक्टिव बिहेवियर है और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हम लोग ने ये पूरा दो लास्ट 2-3 पेजेस में डिस्कस किया। उसको ये कंसाइज करके इसने टेबल फॉर्म में बनाया है। सो इसको आप वहाँ डाल सकता है और इससे आप नॉलेज भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन स्टील में आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैंने मिक्स किया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग यूजुअली मिक्स करेगा हायर थिकनेस के लिए। सो ये जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया है कि कितना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया तो कितना क्या आप हीट ज़्यादा आपको मिलेगा, ये सब इसमें ये लिखा हुआ है। सो ये आपको ज़्यादा फायदा होगा इसको पढ़ के। तो आपको एग्जाम के लिए अगर आपको रिवाइज करना है उसके लिए भी ये अच्छा टेबल है, बट ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। Let's see travel speed and electrode orientation. So because in this, as you know, that it is very important for the travel speed and electrode orientation also. So we have seen where did it say in the variables section. So in this primary variables,
travel speed and electrode orientation. So let's see all these variables. We have seen about gas right now. Let's come to the travel speed. The faster the travel speed, lesser the penetration, narrower the build width, and the higher risk of undercut. This you must understand very well, that there is an optimum speed, and after that speed also you cannot go very fast in this welding, because otherwise your penetration will be less and also your risk of undercut will be more. And also the orientation, if you put 90-degree or you put 45-degree or you put 30-degree, it will also have an effect on the welding. So you can see that the deep maximum severe you will get by doing around 45-degree. Moderate if you are doing 90-degree, shallow and minimum if you are doing 30-degree, 15-degree, or like that. So the effect of contact tip to work distance. Now, we had seen this in the photograph. So let's get the photograph back. This is the photograph. Let's take this and paste it here till our discussion is finished on this topic. Here and so CTWD, it's called contact tip to work distance, has influence over welding current because resistive heating in the electrode extension. So ये जो electrode extension होता है और इसके वजह से ये जो कप अगर दूर गया या नजदीक आ गया तो आपका करंट इफेक्ट होगा, वायर स्पीड इफेक्ट होगा उसके वजह से. So the welding current required to melt the electrode at the required rate to match the wire feed speed reduces as CTWD increases. So अगर जैसा ये डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो गया तो आपका इलेक्ट्रोड ठीक से मेल्ट नहीं होगा. So long electrode extension can cause lack of penetration. और ये जो हीट का जो कमी है या करंट का जो कमी है इसके वजह से लैक ऑफ फ्यूजन आता है. So for example, in narrow gap joints or for poor manipulation of welding gun, conversely, welding current increases, then the CTWD is reduced. तो इसीलिए ये जो पेनिट्रेशन है ये ठीक से नहीं मिल पाता. अगर आपका जॉइंट ज्योमेट्री बहुत ही डिफिकल्ट एरिया में है और अगर वेल्डर का स्किल या वेल्डर एक्सेस वगैरह बराबर नहीं है तो भी आपको लैक ऑफ फ्यूजन आने का चांस है. तो वेल्डिंग करंट अगर आप बढ़ाएगा तो ये CTWD का प्रॉब्लम कम होगा. So this provides, which is basically the travel speed. So this provides experienced welder with means of controlling the current during the welding, but it can result in variable penetration in manual welding and with constant voltage power source. So अगर आपको ये मैनिपुलेट करना है डिफिकल्ट जॉइंट ज्योमेट्री या एक्सेस में तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको उधर वायर स्पीड कम या ज़्यादा करना पड़ेगा. As the electrode extension is increased, the burn-off rate increases for a given welding due to the increased resistive heating. So burn-off rate जो है इलेक्ट्रोड का जो बर्न होने का जो रेट है ये आपका जो ऊपर नीचे होगा आपका और फिर resistive heating भी बढ़ेगा. So increasing the electrode extension mechanized application is therefore one way of increasing deposition rate as the wire feed speed is increased to maintain the required welding current. तो अगर आपको वेल्डिंग स्पीड बढ़ाना है तो आप वो वायर स्पीड इंक्रीज कर सकता है तो इससे वो वेल्डिंग करंट भी बढ़ेगा और आपका रेजिस्टिव हीटिंग भी ठीक होगा. बट फिर इसको आपको प्रॉपरली मेंटेन करने को आना मांगता है वेल्डर को. आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट टिप कहाँ है और ये नोजल का एंड किधर है. Contact tip to work distance, electrode extension and nozzle to workpiece distance. ये फोटो से आपको पता चलेगा कॉन्टैक्ट टिप कहाँ है और इसका कप का एंड कहाँ है और वर्कपीस. ये सब जो ये फोटोग्राफ में दिखाया है ये आपको इतना ठीक से मैनिपुलेट या अंडरस्टैंड होने से अच्छा है. वेल्डर का जो आप ये देखता है वेल्डर का जो स्किल वो उसको यहाँ पे मेंटेन कर कैसा करता है वो कॉन्टैक्ट टिप टू वर्क डिस्टेंस और इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन ये सब इम्पोर्टेंट है. आप सो वेल्डर से आप ज़्यादा बात करेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. अगर वेल्डर आपको नहीं बात करने के लिए आएगा तो आप YouTube पे कुछ वीडियो और भी देख सकता है सो दैट आपको जो वेल्डर्स बहुत सारा वेल्डर्स ने मिग वेल्डिंग करके अपना
पर्सपेक्टिव दिया है, तो आपको उससे मदद मिलेगा अंडरस्टैंडिंग। So resistive heating depends on resistivity of the electrode. So हर एक इलेक्ट्रोड का रेजिस्टिविटी अलग होता है. The electrode extension length and wire diameter so is more pronounced for welding materials which have higher resistivity such as steels. So जो रेजिस्टेंस हर एक इलेक्ट्रोड या फिलर वायर का अपना एक रेजिस्टिविटी रहता है, तो वो पता होना चाहिए जब आप ये सब डिजाइन करता है PQR, तो उसके हिसाब से आपको वेल्डर को वेल्डर ट्रेनिंग देने के लिए मदद होगा. So the electrode extension should be kept small and small diameter wires are used to prevent excessive heating in the wire and avoid resulting in poor bead shape. So अगर आपका resistivity बहुत high है वायर का, तो आपको thin वायर लेना चाहिए. So ये सब जो permutation and combination है, इसको पहले ही PQR से पहले आपको फाइनल करके फिर आपको PQR रन करना चाहिए. इसमें इतना इजी नहीं है कि आप 2.5 इलेक्ट्रोड लिया और रूट पास वेल्डिंग किया, बाद में 3 mm 4 mm से आपने विलन कैप किया, तो बहुत ही सिंपल ये है. पर यहाँ पे गैस का कॉम्बिनेशन होगा, फिलर वायर का कॉम्बिनेशन होगा, ये सब आपको देखना पड़ता है ऑप्टिमाइज करने के. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 19 mm के लिए आर्क लेंथ 6 to 4 mm, आर्क वोल्टेज 24 mm, वेल्डिंग करंट 250 एम्पियर एच रखने के बाद इतने 19 mm से उसको इफेक्ट ऑफ ये जो इंक्रीज करता है हम लोग डिस्टेंस, उससे क्या इफेक्ट होता है या इंक्रीज करने से क्या होता है. सो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कॉन्टैक्ट टिप टू वर्क डिस्टेंस, आर्क लेंथ रिमेन्स द सेम. सो जो आर्क लेंथ तो सेम रहेगा, बट उसमें आपको बहुत सारा पैरामीटर्स चेंज होगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, जानना चाहिए. तो अगर गन पोजीशन थोड़ा भी चेंज करता है या थोड़ा भी ऊपर करेगा या 19 mm से भी नीचे करेगा, तो आपका वेल्डिंग पैरामीटर्स इसमें चेंज होता है. इसीलिए ये जो प्रोसेस है, इसको ऑटोमाइज करना बहुत अच्छा है, करेगा तो आपको अच्छा वेल्डिंग मिलेगा. पर अगर वेल्डर के हाथ में गन दिया हुआ है नेचुरली, तो नेचुरली उसका भी मूवमेंट की वजह से ये चेंज होगा और आर्क लेंथ अनस्टेबल हो जाएगा फिर बाद में आपका वेल्डिंग. इसीलिए जो है ये मिग-मैग वेल्डिंग को हाई क्वालिटी और हाई वेरी हाई क्वालिटी में ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं किया जाता है, बट फिर भी ये एक अच्छा प्रोसेस है क्योंकि इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत हाई मिलता है. आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहता है, वहाँ पे क्वालिटी हमेशा अच्छा नहीं रहता है. मतलब हमेशा ही अच्छा रहता है ऐसा नहीं है. अभी फॉर एग्जांपल SAW में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलता है, बट उसको हम लोग ऑटोमाइज करता है, सेमी ऑटोमाइज करता है, और वहाँ पे बहुत अच्छा हमको देखा गया है कि उसका रिजल्ट अच्छा है. बट FCAW में वही बात वेल्डर के स्किल पे भी निर्भर करता है. So the effect of increasing electrode extension is, this is what you will have from a shallow weld, from a deeper weld you will get the shallower weld as you go on increasing the length. At short CTWs, the radiated heat from the weld pool can cause overheating of the contact tube and welding torch and can lead to spatter adherence and increase wear of the contact tube. So अगर आप बहुत ही कम रखेगा 19 mm से या ऐसा कम करते जाएगा, तो भी वो आपको अच्छा नहीं है, कि फिर कॉन्टैक्ट ट्यूब आपका खराब होने का चांस रहता है, और उससे क्या होता है कि आपका हीट बढ़ जाता है और बाद में कॉन्टैक्ट ट्यूब में स्पैटर ये वो लग के आपको बार बार क्लीनिंग करना पड़ेगा. The electrode extension should be checked when setting up the welding conditions or fitting new contact tube, normally measured from contact tube to the workpiece. The suggested CTWD for the principal mode transfer और डिप ट्रांसफर के लिए कितना लगता है, स्प्रे ट्रांसफर के लिए कितना लगता है, पल्स के लिए कितना लगता है, ये दिया हुआ है. बट मैं फिर भी बोलेगा ये वेल्डर के स्किल के ऊपर है, और वेल्डर का जो ऑप्टिमाइजेशन है उसके ऊपर है, गैस के ऊपर है, बहुत कुछ चीज पे ये निर्भर करता है, पर ये जनरल रूल ऑफ थंब है. तो आप यहाँ ये जो ड्राइंग में डायग्राम में देख सकता है कि इलेक्ट्रोड टिप से ये कॉन्टैक्ट टिप एक्सटेंशन कितना है और यहाँ पे कितना है. सो ये सब आप वेल्डर से आप ज़्यादा बात करेगा, डिप ट्रांसफर, स्प्रे ट्रांसफर, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा. इफेक्ट ऑफ नोजल टू वर्क डिस्टेंस. सो नोजल टू वर्क डिस्टेंस has a considerable effect on gas shielding efficiency and decrease stiffening the column. Nozzle to work distance is typically 12 to 15 mm. If the CTWD is simultaneously reduced, however, the deposition rate
at given current is decreased and visibility and accessibility are affected. So जो nozzle और work distance के बीच में एक ही रिलेशन है, उनके बीच में गैस का जो ट्रांसफर है, जो नोजल से गैस निकलता रहता है वो आपका अफेक्ट होगा, तो शील्डिंग अफेक्ट होगा तो बहुत कुछ अफेक्ट हो सकता है. सो ये आपको याद रखना है कि इफेक्ट ऑफ नोजल टू वर्क डिस्टेंस में नोजल का जो गैस है उसके वजह से आपका वेल्डिंग इफेक्ट होगा. सो एक तो CTWD का डिस्टेंस और बाद में नोजल का डिस्टेंस, ये दोनों आपको अफेक्ट करेगा डिफरेंट तरीके से. सो फॉर एक आपको लैक ऑफ फ्यूजन देगा या ये अंडर हीट देगा, नोजल का इफेक्ट आपको गैस शील्डिंग से महरूम रखेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है. The following gives suggested setting for the mode of metal transfer being used. अभी देखो डिप ट्रांसफर में आपको 2 mm inside and 2 mm protruding रखना है. स्प्रे ट्रांसफर में आपको 4 to 8 mm inside रखना है. स्प्रे ट्रांसफर एल्यूमिनियम में 6 to 10 mm inside रखना है. तो ये सब इसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है. शील्डिंग गैस नोजल. सो ये जो अभी हमने अभी नोजल के बारे में डिस्कस किया. द पर्पस ऑफ शील्डिंग गैस नोजल इज टू प्रोड्यूस लैमिनार ग्लास फ्लो to protect the weld pool from atmospheric contamination. Nozzle diameter range from 13 to 22 mm. It should be increased in relation to the size of the weld pool. Therefore, larger diameter nozzle are used for high current spray transfer application. The smaller the diameter for dip transfer method. तो ये जो diameter है ये spray transfer के लिए और अलग transfer methods के लिए अलग-अलग होता है. Flow rate must also be tuned to nozzle diameter and shielding gas type to give sufficient weld pool coverage. So gas nozzle for dip transfer welding tend to be tapered at the outlet of the nozzle. So मैंने आपको कहा कि गैस का जो चॉइस है और नोजल डायमीटर का जो चॉइस है ये आपस में निर्भर करता है. अगर CO2 है तो आपको नोजल डिफरेंट लगेगा. इस तरह से इसका ये कॉम्बिनेशन है. So joint access and type should be also considered when selecting required gas nozzle and flow rate. Too small nozzle may cause it to become obstructed by spatter more quickly and wire bends or leaving the contact tube. So the shielding envelope and arc location may not coincide. So ये जो है ना, ये जो joint geometry का ऊपर decide करता है कि आपका cup size क्या होगा, आपका nozzle size क्या होगा, आपका flow rate क्या होगा, आपका कौन सा गैस आप यूज करने वाला है. तो ये सब मैकेनिज्म आपको ये बहुत सोचना पड़ेगा अगर आप, क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तो कोई भी वेल्डिंग इंजीनियर अपने प्रोजेक्ट में जो टाइप का बेवल्स आने वाला है वो टाइप के लिए इसको बहुत ही स्पेसिफिकली डिजाइन करता है ये PQR को. तो क्योंकि इसमें वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है जो आपका वेल्डिंग को अफेक्ट कर सकता है, और ये वेरिएबल्स वेल्डर का भी जो वेरिएबल्स है उसके वजह से भी बहुत अफेक्ट होता है. जब आप आर्क वोल्टेज और वेल्डिंग करंट का ग्राफ निकालेगा तो आप देख सकते हैं कि डिप ट्रांसफर में जो ऑपरेटिंग रेंज है वो कितना कम है, और ये जो स्प्रे ट्रांसफर में ये बढ़ जाता है, तो आपका ऑपरेटिंग रेंज बढ़ जाता है. तो इस बीच में जो ट्रांजिशन रेंज है इसमें ग्लोबुलर ट्रांसफर फिट होता है. तो आपको इसीलिए ये ध्यान रख के ही आपको जॉइंट ज्योमेट्री ध्यान में रख के ही इसको आपको डिसाइड करना है. Let's see what are the key characteristics of dip transfer. Metal transfer by wire dipping or short circuiting into the weld pool. Relatively low heat input process. Low weld pool fluidity used for thin sheet material above 8 mm, 0.8 mm and typically less than 3.2. So dip transfer का अपना ही एक रेंज है, वो आपको 3 to 3.2 mm तक ही आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से इफेक्टिवली. Positional welding of thicker section and root run in open butt joints. So आप इसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि positional welding के लिए dip transfer ठीक ठाक रहेगा for thicker sections. Process stability and spatter can be a problem if poorly tuned. So यही है जो इसका ट्यूनिंग बराबर नहीं होगा, इसका स्किल बराबर मैच नहीं होगा, तो ये इसका स्टेबल नहीं रहेगा, ये स्पैटर ज्यादा क्रिएट करेगा. तभी आपको पता चलता है स्पैटर वगैरह होगा तो या तो वेल्डर का स्किल बराबर नहीं है, या ट्यूनिंग बराबर नहीं है, या तो कोई गैस का मिक्सचर बराबर नहीं है, या वो गैस मिक्सचर के लिए थिकनेस बराबर नहीं है. इसमें ये बहुत कुछ हो सकता है.
So lack of fusion, poorly set up and applied. So poor setup ये सब problems आपको create करेगा, plus lack of fusion भी देगा. Not used for non-ferrous material and alloys. ये आपको याद रखना है, dip transfer non-ferrous item के लिए use नहीं करता. In dip transfer, wire short circuits are 50 to 200 times per second, and this type of transfer is normally achieved with CO2 mixture or CO2 argon gas plus low amperage and welding volts lesser than 24 volts. तो ये जो 50 to 200 times per second इसका arc fluctuate होता है और आपको ये short circuiting mode में dip transfer मिलता है. So आप ये फोटो देख सकते हैं किस तरह से ये 3 ड्रॉपलेट यहाँ पे बनाया, इसलिए इसको डिप ट्रांसफर बोलता है. तो इस मैकेनिज्म इज, ये जो इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है थोड़ा ऊपर, बाद में वो ड्रॉप वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड वेल्डिंग पे गिरता है और उसको हम लोग वेल्डर मैनिपुलेट करता है. तो इसका की कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्प्रे ट्रांसफर. अभी हम लोग स्प्रे ट्रांसफर देखते हैं. हम लोगों ने अभी डिप ट्रांसफर देखा, ये मैकेनिज्म. स्प्रे ट्रांसफर पे आते हैं. मैं ये फोटो डिप ट्रांसफर के लिए लिया, एक्चुअली ये स्प्रे ट्रांसफर है. So let's do it again. The key characteristics of spray transfer: pre-flight metal transfer, high heat input, high deposition rate, smooth stable arc, used for steels above 6 mm and aluminum above 3 mm thickness. So ये ideal characteristics आपको चाहिए. अगर आप 6 mm 8 mm वेल्डिंग करने वाला रहेगा तो आपको स्प्रे ट्रांसफर लेना चाहिए. डिप ट्रांसफर याद रखो 3 mm से कम, 3.2 mm से कम रहेगा तो आप डिप ट्रांसफर यूज करेगा. सो स्प्रे ट्रांसफर में आपको क्या क्या फायदा है. स्प्रे ट्रांसफर occurs at high current and voltage above the transition current. Metal transfer is fine spray of small droplets projected across the arc with low spatter levels. आप जब स्प्रे ट्रांसफर मैकेनिज्म यूज करेगा तो इसमें ऐसे ड्रॉपलेट्स गिरते जाएगा वेल्ड पुल पे और आपको फिर ये अच्छा वेल्डिंग देगा हाई करंट और हाई वोल्टेज पे. द हाई welding current produces strong electromagnetic forces, pinch effect, that causes molten filament supporting the droplet to yank down. Droplet detach from the tip of the wire and accelerate across the arc gap. So क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड है 5 स्प्रे ट्रांसफर मोड में, ये बिकॉज ऑफ द पिंच इफेक्ट ये गिरते जाता है नीचे और आप फिर ये मैनिपुलेट कर सकता है वेल्डिंग को वेल्ड जॉइंट बनने के लिए. सो जैसे जैसे ड्रॉपलेट नीचे गिरते जाता है वो वेल्डिंग होते जाता है और ये आर्क स्टेबल रहता है. तो जो फ्रीक्वेंसी विद विच ड्रॉपलेट डिटैच इंक्रीजेस विद द करंट. सो अगर आपको ये ड्रॉपलेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है तो आपको करंट या बढ़ाते रहना चाहिए. अब अगर करंट बढ़ाते हैं तो वायर स्पीड भी बढ़ता है, तो इसके लिए उसको वेल्डर को अच्छा ट्रेन होना चाहिए. ओके, नहीं तो वेल्डर बहुत सारा इसमें फ्लॉ या रिपेयर डाल देगा. So droplet size equates with wire diameter at the threshold level but decreases significantly as welding current increases. So ये जो droplet size है इसका अपना एक खुद का एक ये है. ऐसा नहीं है कि आप एकदम करंट इंक्रीज किया तो एकदम ज़्यादा ड्रॉपलेट गिरेगा, तो आपको वो ये कहीं ना कहीं तो ये टॉप आउट हो जाता है. तो ये वेल्डर स्किल पे निर्भर करता है. वेरी हाई करंट molten droplets can start to rotate रोटेटिंग ट्रांसफर. सो ये हाई एकदम ही आपने बढ़ा दिया तो ये जो वहीं पे घूमते रहेगा वो नीचे पिंच इफेक्ट के हिसाब से गिरेगा नहीं और बाद में एकदम बड़ा बड़ा वेल्डिंग हो जाएगा. सो द आर्क करंट इज फ्लोइंग ड्यूरिंग द ड्रॉप डिटैचमेंट रिजल्टिंग इन मैक्सिमम पेनिट्रेशन एंड हाई हीट इनपुट. व्हेन द करेक्ट आर्क वोल्टेज इज गिवन to spray transfer is used. Arc is short, wire tip is 1 to 3 mm from the surface of the plate. So spray transfer mode में आपको याद रखना चाहिए आर्क को शॉर्ट रखना है और 1 to 3 mm मैक्सिमम ये डिस्टेंस रखना है so that penetration आपको ठीक ठाक मिलेगा. With steels it can be used only in down butt welds and horizontal and vertical fillet welds, but gives higher deposition rate, penetration, fusion than dip transfer because of the continuous arc heating. So इसमें डिप ट्रांसफर से ज़्यादा आपको हीट इनपुट मिल रहा है और पेनिट्रेशन मिल रहा है इन डाउन हैंड बट वेल्ड और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फिलेट जॉइंट्स में. पर आपको वर्टिकल बट जॉइंट करना है तो फिर शायद आपको ये स्प्रे ट्रांसफर मोड बराबर नहीं होगा. सो इट्स मेनली यूज्ड फॉर स्टील प्लेट थिकनेस मोर देन 3 mm but has limited use for positional welding due to
potential large weld pool involved. So positional welding आपको इसमें बाधा आ सकता है due to potentially large weld pool involved. So ये आप weld pool involved मतलब ये जो large weld pool size है, जब वो cool होता है तो वो डाउनवर्ड्स ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड साइड जाता है. तो इसको आपको बार बार बड़ा ग्लोब्यूल आएगा अगर आप वर्टिकल अपहिल वगैरह ट्राई करेगा तो आपको यही इश्यू आएगा, बार बार ग्राइंड करके आपको वेल्ड करते रहना पड़ेगा. इससे अच्छा है कि आपको ये हॉरिजॉन्टल और पोजीशन में ये 1G 2G में यूज करेगा तो अच्छा है. फिलेट वेल्ड्स के लिए यूजुअली ये अच्छा है, पर वहां पे भी मैंने देखा है कि ये ग्रेविटी की वजह से बहुत बार नीचे साइड में फिलेट ज्यादा बनता है, ऊपर साइड में फिलेट कम बनता है. सो की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं पल्स ट्रांसफर का. पल्स ट्रांसफर क्या है देखते हैं. प्री फ्लाइट ड्रॉपलेट ट्रांसफर विदाउट शॉर्ट सर्किटिंग ओवर द एंटायर वर्क रेंज, वेरी लो स्पैटर, लो हीट इनपुट, देन स्प्रे ट्रांसफर. सो पल्स ट्रांसफर का तो हीट इनपुट और भी कम है. सो reduced risk of lack of fusion compared with drip transfer. क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा आगे. कंट्रोल ऑफ द वेल्ड बिल्ड प्रोफाइल फॉर डायनामिक लोडेड पार्ट्स, प्रोसेस कंट्रोल फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें है. enables use of large diameter expensive wires with thinner plates, more easily fed, particular advantage for aluminum welding. तो इसमें आप ज्यादा बड़ा वायर यूज कर सकते हैं वेल्डिंग के लिए पल्स्ड आर्क में. चलो देखते हैं कैसे. द pulsing the welding current extends the range of spray transfer operation well below the natural transition from drip to spray transfer. This allows smooth spatter free welding. Spray transfer at the mean it means current below the transition level. Example 50 ampere and 150 ampere and lower heat inputs. Pulsing was introduced originally to control metal transfer by imposing artificially cyclic operation on the arc system by applying alternative high and low currents. तो ये जो इसका जो वेल्डिंग फिलॉसफी है, ये आपने साइन वेव देखा होगा. तो ये जो साइन वेव में बहुत बार फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी रख के ये अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव लूप करके ये सिस्टम डिजाइन किया गया है. A typical pulse waveform and main pulse welding variable are shown in the figure 13.17. ये वाला जो है. सो इसको दोनों को हम लोग नजर में रखते हैं पढ़ने के टाइम पे. सो आप देख सकते हैं ये जो पीक करंट और वोल्टेज के बीच में, करंट और टाइम के बीच में ये ग्राफ है, और ये जो करंट है बढ़ रहा है और कम हो रहा है, बढ़ रहा है और कम हो रहा है, यही उसमें फ्रीक्वेंसी में. इसमें आप देख सकते हैं ये नेगेटिव साइड में जा नहीं रहा है, पॉजिटिव साइड में ही इसको रेक्टिफाई करके इन्होंने ये पल्स बनाया है. तो ये पल्स का क्या फायदा होगा? टिपिकल पल्स वेवफॉर्म इज शोन. अ लो बैकग्राउंड करंट टिपिकली 20 to 80 एम्पीयर इज सप्लाइड टू द मेंटेन आर्क. तो ये जो आर्क मेंटेन करने के लिए आपको 20 to 80 एम्पीयर इसमें यूजुअली रहता है. कीप द वायर टिप मोल्टन. सो इसका क्या वजह है? आर्क बनने के लिए वायर टिप को मोल्टन कंडीशन में रखने के लिए. सो गिव स्टेबल एनोड एंड कैथोड रूट्स टू मेंटेन एवरेज करंट ड्यूरिंग द साइकिल. सो इससे क्या होता है? एनोड कैथोड का जो रिएक्शन होता है इसमें एवरेज करंट मेंटेन रहता है साइकिल में. सो ड्रॉपलेट डिटैचमेंट occurs during the high current pulse and current levels above the transition level. The pulse of the current generated very high electromagnetic force which causes strong pinch effect and metal filament supporting the drop, and the droplet is detached projected across the arc gap. तो क्या होगा? ये हाई करंट में जब ये पीक पे रहता है फ्रीक्वेंसी, तब आपका जो मोल्टन इलेक्ट्रोड फिलर वायर है वो मेल्ट होके वेल्डिंग पूल पे आ जाता है. फिर ये थोड़ा रुकता है और फिर दोबारा मोल्टन मेटल आता है. तो इससे क्या होता है? वेल्डर को टाइम मिलता है थोड़ा मैनिपुलेट करने का. और वो पिंच इफेक्ट से ये जब ये पीक में मोल्टन हो जाता है तो पिंच इफेक्ट से ये इलेक्ट्रोड जो पिघलता है उससे इलेक्ट्रोड वेल्डिंग में आ जाता है. मोर और लेस इसका सिस्टम सेम है, बट ओनली थिंग इज ये पीक पल्स क्रिएट करता है ये ड्रॉपलेट बनाने के लिए. सो ड्रॉपलेट डिटैचमेंट ऑकर्स ड्यूरिंग हाई
current pulse at current levels above the transition current level. Pulse current generates high electromagnetic force which causes pinch effect. So मैंने वही आपको explain किया. Pulse transfer uses pulse current to fire single globe of metal across the arc gap at the frequency of 500 to 50 to 300 pulse per second. So ये जो चलता है ये 50 to 300 times per second होता है, मतलब ये बहुत ही फास्ट रेट है. इसको आपको अगर कैच करना है तो यूजुअली मिग वेल्डिंग में जो पल्स स्प्रे है वो अगर आपने स्लो मोशन में शूट किया तो आपको एकदम नजर आएगा इसका पल्सिंग. सो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड कैसा आगे पीछे होके 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 गिरता है, आगे आता रहता है और वो मेल्ट होता रहता है. So this is the development of spray transfer that gives positional welding capability for steel. तो इसका इन्वेंशन क्यों हुआ? क्योंकि जो हम लोग ने स्प्रे ट्रांसफर में देखा ये पोजिशनल वेल्डिंग में वो हम लोग यूज नहीं कर पाया था. तो इसमें जो ग्लोब जो मोल्टन मेटल पिघल के जो वेल्डिंग पे गिरता है उसको आप ठीक से मैनिपुलेट कर पाता है क्योंकि आपको टाइम मिलता है इसको वेल्डिंग वीव करने के लिए. Good fusion and high productivity may be used for all the sheet thickness from 1 mm to 6 mm, but mainly used for positional welding of steel for 6 mm. So अगर आपको 6 mm वगैरह positional weld करना है तो ये spray transfer से आप easily कर सकते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. Let's say ग्लोबुलर ट्रांसफर का क्या ये है. तो हम लोगों ने डिप ट्रांसफर देखा 1 to 3.2 mm, फिर स्प्रे ट्रांसफर देखा, फिर वो 6 mm तक, फिर हम लोग ने 6 mm तक देखा ये पल्स ट्रांसफर जो हमको पोजिशनली वेल्डिंग भी करवा सकता है. फाइनली अभी ग्लोबुलर ट्रांसफर देखते हैं. सो ये ग्लोबुलर ट्रांसफर में इरेगुलर मेटल ट्रांसफर होता है, मीडियम हीट इनपुट रहता है, मीडियम डिपोजिशन रेट रहता है और स्पैटर का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है. नॉट वाइडली यूज्ड इन यूके, कैन बी यूज्ड फॉर मैकेनाइज्ड वेल्डिंग ऑफ मीडियम थिकनेस, टिपिकली 3 to 6 mm स्टील इन फ्लैट पोजिशन. सो अगर ऐसा है तो ये ग्लोबुलर ट्रांसफर का इफेक्ट क्यों हुआ ही क्यों, इसका इजाद क्यों हुआ, देख ये आपको पता चलेगा. सिनर्जिक. सिनर्जिक इज अ टर्म मीनिंग. सिनर्जी का क्या मतलब है? सिनर्जी का मतलब है कि अगर हम लोग दो कंपनी जब मर्ज करता है और वो सेम प्रोडक्ट बनाने वाला रहता है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा जो उसमें आपको सिनर्जी देख सकता है कि फॉर एग्जांपल सेम डिजाइन टीम होगा, सेम प्रोक्योरमेंट टीम होगा, सेम कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन टीम होगा. तो इसको आप क्या कर सकता है, यहाँ का वहाँ का यहाँ यूज कर सकता है. एक ऑफिस बंद करके दूसरा ऑफिस से काम चला सकता है, तो मैन पावर भी कम कर सकता है. तो ये सब आप सिनर्जी में कर सकता है. तो ये सिनर्जी में मिगमैग में क्या क्या है देखते हैं. Synergy is a term meaning working together or was originally designed to establish correct pulse parameters in Mi'kmaq welding over the range of wire diameters and gas mixtures. Manually adjusting. अभी हम लोग के पास बहुत सारा गैस मिक्सचर है, बहुत सारा वायर का डायमीटर है, आपने ये सब पढ़ा अभी तक. तो इसमें सिनर्जी बहुत सारा अवेलेबल है. सो देखते हैं कैसे सिनर्जी इसमें लेके आया है. Manually adjusting pulse parameters was problematic with many variables to adjust. So pulse peak, pulse time, background current, background time. So consequently to arrive at the correct arc condition was time consuming and fraught with errors. So इसमें बहुत सारा पैरामीटर्स है. जो पैरामीटर्स हम लोगों ने पहले 3-4 पेज पहले देखा था, तो इसलिए इसको सिनर्जी इसमें लाना बहुत जरूरी था. So with the advancement of electronically controlled power source and subsequent CPU inverted control system, it's allowed the manufacturer to produce one knob control system. Therefore, all parameters previously mentioned can be controlled via one knob operation to establish the correct arc condition and determined by the manufacturer of power source. In essence, as knob is turned, the wire speed increases, possibly voltage change to keep the balance arc condition. इसीलिए ये सब अभी आजकल इलेक्ट्रॉनिक PCB controlled and CPU कंट्रोल मतलब कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम्स आ चुका है.
तो इसलिए इसमें क्या है, अपने दो ही नॉब है इसमें, वेल्डिंग करंट इंक्रीज करना, विच इज वायर स्पीड इंक्रीज एंड वोल्टेज इंक्रीज। तो ये दोनों को आप ये दोनों चेंज करके आप बैलेंस्ड आर्क लेके आ सकता है। बट इसमें फिर भी मैं बोलूँगा गैस का भी इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारा अदर चीज का इन्वॉल्वमेंट, कॉन्टैक्ट टिप टू वर्क का डिस्टेंस है, ये भी आपको ख्याल रखना है। सो द मैन्युफैक्चरर्स हैव प्रीडिटरमाइंड सिनर्जिक कर्व्स based on material type, wire diameter, gas mixture to facilitate the setup, and information is programmed in by the user. A unique curve is produced based on the input. The user is then adjusted via knob control via up and down synergy curve. Most machines, however, have an option to adjust the voltage of synergy curve if required. In addition, one is acceptable welding position condition is found. Most manufacturers have ability to save the memory for later recall. So इसमें synergy curves आता है. Synergy curves मतलब ग्राफ्स है, जो ग्राफ आप ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज कर सकता है. और इसमें मेमोरी सेव करने का भी प्रावधान है, सो दैट वेल्डर को एक प्रोसेस में ओके ऑप्टिमाइज हो गया तो उसको सेव कर सकता है और बाद में फिर वो वही यूज कर सकता है. So the globular transfer range occupies the transitional range of arc voltage between free flight and fully short circuit transfer. Irregular droplet transfer and arc instability are inherent, particularly when operating near transition threshold. The globular transfer, a molten droplet, several times the electrode diameter forms in the wire tip. Gravity eventually detaches this, and this weight overcomes surface tension and transfer takes place between the excessive spatter. Therefore, transfer the arc wanderers and cone covers the large area dissipating energy. अभी ग्लोब ट्रांसफर में क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा ग्लोबुलर मोल्टन ड्रॉप इलेक्ट्रोड के साइज से कई गुना ज्यादा 3 to 4 times ये मेल्ट होके नीचे गिरता है. अभी ग्रेविटी इसको जैसे ही मेल्ट होता है नीचे गिरा देता है, फिर बाद में इसको आप वेल्डिंग में आप उसको मैनिपुलेट करता है. So ये वो प्रोसेस है जिससे वो वेल्डिंग होता है. So there is a short duration of short circuit when the droplet contacts with the molten pool, but then rather causing droplet transfer, it occurs as a result. Although the short circuit is of very short duration, some inductance is necessary to reduce pattern. Although the operator is short circuits are not discernible, arc has the appearance of fleet flight type. ये जो मेथड है ग्लोब ट्रांसफर का, इसमें शॉर्ट सर्किटिंग मेथड से वही हमने जो डिप ट्रांसफर में देखा था, सॉरी पल्स ट्रांसफर में देखा था, तो वही ये मेथड है. बट इसमें क्या है, मोल्टन ड्रॉपलेट बहुत बड़ा साइज का गिरता है और बाद में ये फिर आपको वेल्डिंग में ये मिलता है. सो ये जो ड्रॉपलेट ट्रांसफर है ये शॉर्ट सर्किटिंग से आपको वापस स्लो मोशन में ये दिखाई देगा. इसमें कुछ इंडक्टेंस भी उनको करना पड़ता है क्योंकि द ग्राफ दैट इज रिक्वायर्ड इज डिफरेंट टाइप. तो मैं आपको ये बताएगा आने वाले इसमें इंडक्टेंस के जो पैराग्राफ में कि इंडक्टेंस का क्या मतलब होता है एंड ऑल दैट. To further minimize spatter level, it's common to operate very short arc length. Some cases buried arc technique is adopted. So इसमें हमको spatter level थोड़ा आएगा और वो spatter level कैसे हम लोग कम करेंगे, तो arc length कम रख के. So नहीं तो इसमें lack of fusion, uneven weld bead, so irregular transfer and और इसमें arc wandering भी होता है क्योंकि इसमें rectified voltage है ये, तो इसमें आर्क आपका थोड़ा इधर उधर जाने का चांस है. तो इसमें वेल्डर स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए. Next we will see inductance. Let's see which are the pending items, which is inductance we have to study, and that will be the last. Then I will make a video of this. Actually ये मैं सिर्फ को बोलूँगा कि ये जो चैप्टर है, ये जो मशीन का बेसिक्स है, ये पहले होना चाहिए और बाद में इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है ये होना चाहिए. बट इन्होंने क्या किया, पहले एक्सप्लेनेशन डाला और बाद में ये पूरा का पूरा जो इक्विपमेंट है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो डाला है. तो आई होप ये उनको करेक्ट करना चाहिए आने वाले इसमें. तो इंडक्टेंस में देखो आप करंट और
टाइम का जो अगर ग्राफ प्लॉट किया तो हमको जो ये ब्लू लाइन है ऐसा वाला इंडक्टेंस चाहिए, ना कि ये रेड वाला सडनली राइज होता है और बाद में नीचे गिरता है या फ्लैट होता है। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। When Wigmag welding, the dip transfer mode, welding electrode touches the welding pool causing short circuit, during which arc voltage is nearly zero. If the constant, ये हमारा याद रखना चाहिए आपको कि constant voltage power source है Wigmag welding में। So if the constant voltage power supply responded instantly, very high current would immediately begin to flow through the welding circuit, and a rapid rise in the current to a high value would melt the short-circuited electrode free, with explosive force, dispelling the weld metal and causing considerable spatters. तो ये मिगमैग बिल्डिंग में अगर हमको कांस्टेंट सर्किट का वोल्टेज जो मशीन हम लोग यूज करता है, अगर आपका ये करंट सीधा स्टार्ट होगा एकदम हाई में, ये रेड लाइन की तरह, तो क्या होगा, ये पूरा वायर आपका इमीडिएटली मेल्ट हो जाएगा और बाद में वो वेल्ड पूल में आके जब गिरेगा तो वेल्डर को मैनिपुलेट कर नहीं पाएगा। इसीलिए इसका इंडक्टेंस होना ये मशीन में बहुत जरूरी है। सो इंडक्टेंस क्या करता है, इसको स्लोली लेके आता है और बाद में इसको प्लेटियो में लेके आता है, मतलब ये जो स्लोली बढ़ाता है और बाद में फ्लैट करता है। So inductance is property of an electric circuit that slows down the rate of current rise. तो हमको एकदम करंट राइज नहीं चाहिए, स्लोली चाहिए, इसलिए ये इंडक्टेंस इसमें डाला गया है, ये आपको याद रखना चाहिए अभी। The current traveling through inductance coil creates the magnetic field which creates current in the welding circuit in opposition to the welding current. Increasing inductance will also increase the arc time and decrease the frequency of short circuiting. So inductance इसमें ये मशीन में इसीलिए उन्होंने डाला है सो दैट ये सडनली आपको करंट राइज देगा नहीं। ये जो सडन करंट राइज है ये आपको SMAW में चाहिए, क्योंकि वहां पे पहले हाई करंट मुझे चाहिए वेल्डिंग इलेक्ट्रोड मेल्ट करने के। वहां पे आपको अगर ये इंडक्टेंस दे दिया तो आपका आर्क स्टेबल होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। So there is an optimum value of inductance for each electrode feed rate. Too little results in excessive spatter, too much the current will not rise fast enough to molten tip of the electrode. It is not heated sufficiently, causing the electrode to stub in the base metal. तो ये जो कभी आपका बहुत हीट होके इलेक्ट्रोड ये मेल्ट हो जाएगा या कभी वो इतना हीट ही नहीं होगा और वो स्टक होते जाएगा बार बार। Modern electronic power source automatically set inductance to give smooth arc and metal transfer. So जो मॉडर्न मशीन्स अवेलेबल है पावर सोर्सेस, उसमें ये ऑटोमेटिकली सेट किया रहता है। ये आपको बताने का एक रीजन, एक्चुअली ये क्यों चैप्टर में डाला मुझे भी इतना ये नहीं है, अब नहीं डालता था तो भी चलता था, बट फिर भी आपको ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो गाइड करता है आपका वेल्डिंग, क्योंकि इसमें आपको कोई चॉइस नहीं है, इसलिए ये मशीन में प्री फेड आता ही है इंडक्टेंस, पर फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है ये बेसिक वेल्डिंग इक्विपमेंट में, तो ये पहले ही वेल्डिंग का वेल्डिंग ये वीडियो शुरू करके ही मैंने एक्सप्लेनेशन किया है सो दैट यू नो व्हाट इज इट। तो इसके साथ मिग चैप्टर यही खत्म करते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत मशीन के बारे में आपने पढ़ा, फाइनल है ये फ्लक्स कोड ऑफ वेल्डिंग वाला मामला, ये आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, पढ़ लेते हैं। So in mid-80s, the development of self-shielded, gas-shielded FCW was a major step in the successful application of on-site semi-automatic welding and has enabled much wider range of materials to be welded. So आजकल का जो FCW फ्लक्स कोर है वो सेल्फ शील्डिंग में भी आता है और गैस शील्डिंग में भी आता है। सेल्फ शील्डिंग में गैस का जरूरत नहीं रहता है, तो आप इसको पोर्टेबली यूज कर सकते हैं जहां आपको चाहे वहां, पर इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसका वायर थोड़ा महंगा आता है। मैंने सुना है कि 2 to 3 टाइम्स इसका एक्सपेंसिव रहता है नॉर्मल सॉलिड वायर से। और गैस शील्डेड तो हम लोगों ने देखा है, गैस शील्डिंग के FCW भी करता है। So cold wire consists of metal sheath containing granular flux which can contain elements normally used in MMAW electrode. So the process has a very wide range application. And एक
कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक फोटो अगर मिलेगा तो दिखा दूं। फोटो से आपको अच्छा अंदाजा आ जाएगा। सो इस तरह से ये दिखता है। आप देख सकते हैं ये बीच में जो है ग्रे पार्ट है ये ग्रैनुलर फ्लक्स है और यही आगे जाके स्लैग बन जाता है। और ये जो आउटर शीट है ये मेटल नेचुरली जो हमको वेल्ड करना है ये मेल्ट हो जाता है और ये फ्लक्स उसको शील्ड करता है। तो यही FCAW का वायर है। सो इन एडिशन ये उल्टा है। फ्लक्स कोड वायर में बाहर से शील्डिंग रहता है या कवरिंग रहता है, इसमें अंदर से इन्होंने किया और बाद में ये लॉक कर दिया इसको प्रोसेस ऑफ एक्सट्रूजन से। So in addition, gas producing element compounds can be welded in flux so that process can be independent of separate gas shield, which restricts the use of conventional Mi'kmaq welding in many field of application. इसमें गैस भी यूज होता है क्योंकि इसमें सेल्फ शील्डिंग भी है, गैस शील्डिंग भी है। Most wires are sealed mechanically, hermetically with continuous form joint. The effectiveness of the joint and inspection of cord wire welding as moisture can easily be absorbed. तो आपने देखा ये जो सीम है यहाँ पे, यहाँ से करोजन होने का हाई चांस रहता है, इसलिए इसको वो लोग हर्मेटिकली सील्ड प्लास्टिक इसमें आपको कंटेनर्स में मिलेगा। सील ओपन करने के बाद आप कोशिश करो कि ये सबसे जल्दी आप फिनिश कर देगा वेल्डिंग, और वेल्डिंग शाम को खत्म हो जाएगा तो ये वायर उसमें से निकाल के आपको एक प्लास्टिक बैग में डाल के दोबारा वेल्डिंग स्टोर में एकदम कूल क्लाइमेट में रखना है सो दैट मॉइस्चर वहाँ पे पिकअप नहीं होएगा, और फिर नेक्स्ट डे आप इसको लेके जाके दोबारा वेल्डिंग कर सकते हैं। अब मेक श्योर करो ये 1 दिन 2 दिन साइट में पड़ा नहीं रहे, नहीं तो ये खराब हो जाएगा पूरा वायर। और बहुत बार मैंने देखा है पूरा का पूरा रील हम लोग फेंक देता है। So wire type commonly used are rutile, basic, metal cord and shelf shielding with no extra gas. So अब ये टाइप का वायर इसमें आता है। So baking color code wire is ineffective and will not restore the condition of. So इसको आप बेक करके भी कोई फायदा नहीं है, एक बार ये खराब होता है तो खराब हो जाता है। Summary of solid wire, MIG and MAG, equipment requirement and parameter of inspection point क्या क्या चेक करने का, फिर typical imperfection, ये सब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। ये फाइनल है इसके चैप्टर का, इसके बाद हमारा FCAW शुरू होगा। तो ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, कांस्टेंट वोल्टेज, ये तो हम लोगों ने पहले ही बताया आपको। पावर एंड पावर रिटर्न केबल, फिर इनर्ट एक्टिव गैस मिक्सचर, ये सब आपको हम लोग इसमें बताया इक्विपमेंट का, इसमें सेम है। फिर वायर फीड स्पीड, ओपन सर्किट, वायर टाइप, डायमीटर, गैस एंड फ्लो रेट, कॉन्टैक्ट टेप, रोलर्स, लाइनर साइज, इंडक्टेंस सेटिंग, इंसुलेशन एक्सट्रैक्शन, फिर कनेक्शंस, फिर ट्रैवल स्पीड, ये सब हम लोग ने डिस्कस किया, वही है। फिर टिपिकल वेल्डिंग इम्परफेक्शन, इसमें स्लैग आ सकता है, सिलिका इंक्लूजन आ सकता है, लैक ऑफ फ्यूजन तो हमेशा आता है डिप ट्रांसफर में, फिर सरफेस पोरोसिटीज आता है, स्पैटर इसमें लिखा नहीं है पर वो हमेशा आता है इसमें, बहुत सारा इसमें, अगर आपने इसको बराबर से ट्यून नहीं किया तो। इसमें क्या फायदा है, हाई प्रोडक्टिविटी मिलता है इसमें, इजीली ऑटोमेट कर सकता है, पोजीशन में डिपेंडिंग ऑन डिप पल्स आप सब इसमें यूज कर सकता है, मटेरियल थिकनेस रेंज आप ज़्यादा वेल्डिंग कर सकता है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रोड है, आपको इलेक्ट्रोड कंटिन्यूसली फीड करने का जरूरत। पर डिसएडवांटेजेस भी है, जो डिस्क ट्रांसफर में हम लोग ने लैक ऑफ फ्यूजन देखा, स्मॉल रेंज में कंज्यूमेबल्स है, फिर प्रोटेक्शन फॉर साइट वर्किंग आपको करना पड़ेगा, इक्विपमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और फिर थोड़ा ओजन लेवल इसमें हाई। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब हम लोग FCAW में एक और चैप्टर बनाएंगे।